गंगा किनारा, गंगा की धारा. This is our Rishikesh ashram. So lot of things happen, you know. Ashram is feeding, and we are supporting all the sadhus who are here for their spiritual upliftment, and they are doing their sadhanas here. And we have our courses going on and so many other things. This is our Art of Living ashram, and this is where Gurudev stays when he comes, you know, this place. So many of us who have been here, we know that we stay here and we wait for Gurudev to wave from the window. Let's go and check inside. How is it? As of now, Swami Satya Chaitanya ji is taking care of our Art of Living ashram. So let's see. You need to put on mask and everything. They sanitize your luggage when you come. They have a spray. And we have Swami Satya Chaitanya ji with us. Jai Gurudev Swami ji. Jai Gurudev. Jai Gurudev. So Swami, welcome to the Art of Living ashram, Rishikesh. Rishikesh ashram. Sri Tattva store. Nadi Pariksha होती है, सारे therapies also we have here. So can you show us the ashram? Oh yes. Why not? So Swami Satya Chaitanya ji was earlier in Bangalore, and he was taking care of Sumeru Travels for many years. And his job was to pick Gurudev from airport and drop him to ashram and again take him to airport. And do all the travels of everybody in Art of Living. So here we have the Cafe area. cafe area. Cafe is closed now due to Waiting Corona. come cafe. Yeah, it's closed due to, but it's operational whenever people are here. People are here. Yeah, very nice. So आज साधु भंडारा भी हुआ स्वामी जी. Today we had साधु भंडारा. Yes. So we keep doing the sadhu bhandara. Yeah, once in a while. Almost every 15 days in Amavasya there is the new moon and the full moon. So we are going here or up? First we will go with the, Down. And this is our hall. this is our bigger hall, जहाँ पे we can accommodate around 200 people. Dance courses. गुरुदेव यहाँ पे सत्संग करते जब भी आते हैं. सत्संग करते हैं. This is our This is where hall. Gurudev sits and Yeah. gives darshan यहाँ से. Today we had sadhu bhandara also here. So many people who are here in Rishikesh doing their sadhana. So ashram, but Bangalore Art of Living ashram is taking care of all the sadhus. To the reception where you get your registrations done. So usually we have how many courses in a month? Every week 2 courses are there for sure, but during the peak times like the May, June and during the year ends we have 3 to 4 courses also a week. Wow. So this is our reception where you get yourself registered. We have Dhruv who is manning the counter right now. Hi Dhruv. जय गुरुदेव. जब गुरुदेव आते हैं सब लोग यहाँ वेट करते होते हैं, और यहाँ से अंदर जाना इज द फर्स्ट स्टेप दैट सब लोग क्रॉस करना चाहते हैं. तो लेट्स गो इनसाइड. गुरुदेव स्टेप्स, यही अपने स्टेप्स है. लेट्स गो टू फर्स्ट फ्लोर. अभी शायद पेंटिंग का काम चल रहा है स्वामी जी ना. ये तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगी होती है. हाँ, अभी लगाएंगे. हाँ, ये देखो किले. वही मैंने याद आया मुझे. यहाँ पे अभी थोड़ा इसको क्योंकि हाथ लगते हैं तो गंदे हो जाते हैं. जी 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 जी. Now we are on the first floor of the ashram and we'll be going to the halls here. Come this side. हाँ, ये हॉल में दर्शन रूम. Yeah, there's a darshan line and also courses, Course hall. big courses happening out here. Wow, very beautiful hall. Yeah, this is where. गंगा किनारे बैठ के, पर चाहे तो एसी में बैठ के भी मेडिटेशन कर सकते हैं. Yes. गर्मियों में रिक्वायरमेंट होती है. हाँ. And yeah, to keep cool. वेरी नाइस. तो ये एक हॉल है. हाँ, ये एक हॉल है. Then we have another smaller hall, छोटी और एक hall connected to your small courses or some reading. You can have some nice quiet time and do your it's sadhana. everything is online nowadays, so यहाँ से सब ऑनलाइन सेटअप होता है. Yes. वेरी नाइस. Yeah, so we have the Ganga running all around. So Gurudev, whenever he comes, he sits here. ये यहाँ पे यूजुअली बैठते हैं. सामने गंगा का व्यू है, बहुत सुंदर.
तो बिल्कुल यहीं पे गंगा माँ का दर्शन भी होता रहता है, बहुत सुंदर सा। अच्छा, यहाँ से सामने जो दिख रहा है वो भूतनाथ टेम्पल है शिव जी का, और बिल्कुल और टेरेस पे से देखेंगे और क्या क्या। ओके लेट्स गो। यहाँ पे रीडिंग रूम है। We have a library set up here, books of art of living as well as many other Scriptures. scriptures publications are here. So for some time in a day, what you like to read by yourself, and it's a good time to do it. Yeah. Let's go. ये सब गुरुदेव को गिफ्ट्स आए हुए हैं। souvenirs. यहाँ पे रूम्स भी है। For the old age people. ये जो है सेकंड फ्लोर। Right now, yes. So right now we are on the second floor or Gurudev's floor. Let's see. Major accommodation of the ashram is on this floor. And now we are entering in the hall where Gurudev meets. Where he Meets people. meets people. So many birds in Rishikesh, so they have kept such paintings everywhere. This is Gurudev's room. Oh, it's under cleaning now. So the cleaning, and we have the Gurudev's room by the side. मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे जो फोटो है तो गुरुदेव वॉज सिटिंग हेयर, सब यहाँ पे उस तरह का अरेंजमेंट भी था उस वक्त। Yes. और मेरी नई नई शादी हुई थी, तो गुरुदेव वॉज, मैं गुरुदेव को इंट्रोड्यूस करता, गुरुदेव शी इज़ अपूर्वा, यू नो, गुरुदेव को तो जानते ही थे बट जस्ट टू बी फॉर्मल। गुरुदेव वॉज लाइक, अपूर्वा क्या अब क्यों बोल रहा है ऐसे, स्वीट हार्ट। उसी वक्त फिर गुरुदेव ने हमारे दोनों के जो सर अपने गोद में ले लिए, एंड बहुत ही सुंदर फोटो है मेरे फेसबुक का जो ऊपर होता है कवर फोटो, दैट्स द वन। तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ सामने का व्यू मस्त है भाई, गंगा का पूरा व्यू है ये। ये सामने 84 कुटिया है ना, Yes. 84 कुटिया ऊपर दिख रही है। ये वाला। Yes. ये 84 कुटिया महर्षि आश्रम, उसका भी एक वीडियो डालूंगा मैं डेफिनेटली। आज जा रहा हूँ मैं वहाँ। 84 कुटिया है। तो गुरुदेव यहाँ बैठ के हमें सारा जो उनकी जो यादें थे बता रहे थे, 84 कुटिया वाली महर्षि की, किस तरह से एक बार वो आश्रम में पीछे के रास्ते से निकल गए जंगल में, उनको जब सिद्धि टेस्ट करनी थी अपनी अहिंसा वाली, तो शेर ढूंढने के लिए निकल गए। तो शेर ढूंढने के लिए निकल गए गुरुदेव, और शेर तो नहीं मिला बट रात को एक जगह पे उनको आवाज़ आई रुको, दैट स्टोरी इज़ देयर। तो फिर वो रुक के किसी और, ही चेंज हिज डायरेक्शन, और जब सुबह वापस आ रहे थे तो पता चला कि वहाँ पे खाई थी, तो एक कदम और आगे डालते तो गिर जाते। तो ऐसे कई सारी स्टोरीज। फिर बता रहे थे एक बार कि यहाँ पे कुछ था नहीं इतना सब आश्रम्स वगैरह, बैठे थे ऐसे गुरुदेव, किसी मन में कुछ चल रहा था, चल बिचल, तो बैठे थे, और उस वक्त ही बैठे थे तो उस वक्त ही मन में उनके कुछ चल रहा था, चल बिचल, तो गंगा के पानी ने वो शांत कर दिया उसको देखते देखते। रात के समय बोल रहे थे, बहुत लेट नाइट तक बैठे थे इस तरह से। सो ये गुरुदेव का रूम है। This is the door. Yeah. This is the door. This is the door where you want to enter somehow. Yeah. Whenever you are in Rishikesh, this is the door of the divine. तो जितने भी हम लोग आते हैं यहाँ पे गुरुदेव के साथ, तो बाहर रूम्स में हम रहते हैं, तो हमारी बहुत इच्छा रहती है कि जाए गुरुदेव के साथ रात में टाइम स्पेंड करें। तो हम देखते हैं कि रात में उनको पैर दबाना और उनकी सेवा करना, इस तरह से। एक मुझे इंसिडेंस याद है, टेरेस पे जा रहे हैं ना, तो हम टेरेस से नीचे आ रहे थे, और एवरी नाइट हम गुरुदेव के पैर दबाना। तो दिस वॉज लाइक माई रूम हियर दैट टाइम व्हेन आई केम, आई थिंक 204, मैं गौरव भैया और हम सब यहाँ रह रहे थे। हाँ,
202 दिखा दूँ? देखो अभी सब क्लीनिंग चल रहा है, बट अगर कोई अलग अलग है 3-4 लोग गुरुदेव के साथ तो दे स्टे हियर। और तो बेसिकली गुरुदेव, मैं आपको स्टेयर्स दिखा, नीचे आ रहे थे। आई थिंक दिस वॉज द स्पॉट, ही वॉज कमिंग डाउन फ्रॉम देयर एंड हमने पूछा गुरुदेव को मैंने कि गुरुदेव आपके पैर दबा दूँ? एंड गुरुदेव वॉज लाइक कि नहीं, आज हमारा किसी दूसरे दुनिया के साथ अपॉइंटमेंट है। एंड वी सॉ कि गुरुदेव का रात को 1-2 मतलब टिल वेरी लेट नाइट हिज रूम लाइट्स वेयर ऑन। तो रूम में बैठ के कुछ यस भाई स्वामी जी, ये है टेरेस। टेरेस के तो आप बताओ अभी टेरेस के बारे में। हाँ, जहाँ गुरुदेव whenever he finds time he just takes a walk, and this is the point where he meets, he talks, he discusses, he many a time, most of every evening after dinner he comes here. This is where he sits, so and looks at जो उनके बताते हैं, जैसे गुरुदेव उनकी सखी गंगा बहती हुई, and he meditates, he gives some very nice knowledge. तो यहाँ पे गुरुदेव ने अपना This is where he teenage, spends his time. he spent his teenage here। जानकी झूला जो नया बना है, यहाँ पे गुरुदेव बैठते हैं। कोई लाइट नहीं है यहाँ पे, अंधेरे में ही बैठते हैं। अभी भी लाइट नहीं है। आई वांटेड टू डू शूटिंग फ्रॉम यस्टरडे नाइट, लेकिन बंद, पर यहाँ पे गुरुदेव चेयर लगा के बैठते हैं। यहाँ पे सब लोग बैठते हैं। मूवी के सॉन्ग्स गुरुदेव के लिए गाए जाते हैं और बस गुरुदेव बैठ के, यहाँ पे चांद होता है रात को, मज़े करते हैं और क्या। जी स्वामी जी, आपकी तो काफ़ी मेमोरीज होंगी ऋषिकेश की। ऋषिकेश ही वो जगह है जहाँ पे गुरुदेव से पहली बार मिले और गुरुदेव ने कहा आ जाओ बैंगलोर। अच्छा, पहली बार सेवा में मैं यहीं पे था और बहुत अच्छी अनुभूति थी। तो काफ़ी सारे हम लोग, भवतेज जी स्वामी जी हैं, सुभाषीष जो अभी SSU में हैं, और भी कुछ लोग थे हम लोग, जो पहली बार गुरुदेव ने बोला कि आप आ जाओ बैंगलोर। तो वो सेवा में फिर यहाँ से सीधा बैंगलोर पहुँचा। और यहाँ पे गुरुदेव गंगा डिप लेते हैं। व्हाट आर योर मेमोरीज ऑफ गंगा डिप? फर्स्ट टाइम आई रिमेंबर, सेकेंड और थर्ड टाइम, क्योंकि पहले तो वानप्रस्थ में उस तरफ होता था। जब यहाँ पे कोर्सेज शुरू हुए तो पहली बार यहाँ पे डिप ले रहे थे, तो बोले अरे होली के बाद। तो ही वाज सेइंग काफ़ी पत्थर है नीचे, काफ़ी पथरीला है, तो हम लोग थोड़े से फिसल रहे थे, गिर रहे थे। फिर उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और बोले मैं हूँ ना, चल अब डुबकी मार। फिर हमने गुरुजी के साथ 3 डुबकी मारी। गुरुजी बोले हाँ अब तुम सबकी बेहतरीनी पार्ट, मैंने अब क्रॉस हो गए, अब पहुँच गए, चलो। सो इट वाज लाइक वाओ, ऐसा कुछ ये लगा नहीं कि समथिंग स्पेशल वी आर डूइंग एट दैट टाइम, क्योंकि तभी कुछ पता ही नहीं था बेतरनी क्या होती है और क्या ये सब पार होना होता है। जब समझ में आया तो आज उस समय का इम्पोर्टेंस समझ में आता है कि वाह, गुरुजी ने वैसे ही बहुत सिंपल जैसे नॉलेज देते हैं वैसे ही ये सब करवा दिया, हमें पता ही नहीं चला कब कैसे क्या हो गया। मतलब डेफिनेटली ये एक स्पिरिचुअल अनुभव तो है ही गुरुदेव के साथ डुबकी लगाना। बट आई थिंक जितने भी यंगस्टर्स हैं, हाँ स्वामी जी, यस, हमारे लिए तो ये मस्ती वाला अनुभव ज़्यादा है। यस, हाँ, अनुभव उनको हक करना या उनके साथ वो अनुभव है, वो खेलना, पानी में खेलते हैं ना, वो स्विम करते हैं। आप चाहते हो ना आना, डुबकी लगाना, उनके साथ अनुभव तो आना पड़ेगा यहाँ। बिल्कुल। हाँ, ये मतलब गंगा में आप डुबकी कहीं पे भी लगा सकते हो, बट जहाँ गुरुदेव ने डुबकी लगाई है, जहाँ गुरुदेव रहते हैं, जहाँ गुरुदेव मस्ती करते हैं, बिल्कुल आना है सबको। बहुत ही सुंदर यहाँ पे कोर्सेस होते हैं। हर कोर्स के लास्ट में साधु भंडारा होता है ना स्वामी? यस, इसके लास्ट में अंतिम वही होता है कि जब कोई पुण्य कुछ यज्ञ करते हैं, नियम है, हर यज्ञ के साथ एक तीसरा कर्म है। तो कोई भी जो यज्ञ है बिना दान के अपूर्ण कहा जाता है। तो ध्यान भी एक यज्ञ है, जब सब लोग मिलके करते हैं। उसके बाद अन्नदान करते हैं साधुओं के लिए जो यहाँ साधना कर रहे हैं, तो उसका पूर्णता होती है। So now we are entering the प्लेट्स धो रहे हैं, मतलब ये किचन एरिया है, आश्रम की ट्रेडिशन। Yes, यू वॉश योर ओन प्लेट्स। dining hall.
खीर, हाँ खाते हैं जी। यस, तो आप देख रहे हैं कि भोजन अच्छा है, बता रहे हैं। तो सुन भैया के साथ हम जा रहे हैं महर्षि 84 कुटिया। आपका योगदान रहा साधु भंडारे में, कैब सब बना के लेके आए थे। स्वामी जी का योगदान है सारा, हम तो कुछ भी नहीं है, सब गुरु जी। ये किचन खाना बनता है, वेरी नाइस। ओके स्वामी जी, यू वांट टू इनवाइट ऑल? ऑफ कोर्स, नॉट इनवाइट, दिस इज योर ओन प्लेस, कम। ऋषिकेश आश्रम में साधु भंडारा होता है, तो सब महात्मा जो महाराज जी है, सब महात्मागण है, वो भोजन लेते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तो एक नेटवर्किंग हो जाता है, ज्ञान का आदान प्रदान, कहाँ पे क्या चल रहा है, धर्म का जो स्थान है ऋषिकेश, उसमें किसकी साधना की क्या ग्रोथ है, तो एक मिलना जुलना हो जाता है। सब लोग खाने से पहले बाहर सबसे मिलते हैं, इस तरह से सब होता है। साधु भंडारे में फिर आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम के द्वारा जब 100 साधु आते हैं, तो आज जिस साधु भंडारा हो रहा है तो खाना बहुत अच्छे से खिला, जो है खीर और मलाई कोफ्ता है और बहुत अच्छे से सब जो भोजन है वो सब उनको खिलाया जा रहा है। आवश्यकता की सारी चीज़ें जो है वो भी यहाँ पे है, इसके साथ ही गर्म पानी, गाय का घी, रोटियाँ है एंड सारा खाना है यहाँ पे, दाल चावल जो भी लगता है वो सब है, सब्जी, खीर। हाँ अच्छा, क्या सब्जी देख सकते हैं? ठीक है, मलाई कोफ्ते भी बने हुए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट खाना सारे महात्मा गणों के लिए। तो ज़रूरत का जो सामान है वो भी इन सबको दान में दिया जाता है। तो जैसे इनको जो अभी ठंडी का समय है तो सर के पहनने के लिए कैप, कुछ बिस्किट्स, पूजा के लिए अगरबत्ती, टूथपेस्ट है, नहाने का साबुन और उसके साथ ब्रश और शैम्पू है बाल धोने के लिए, कई महात्माओं की जटाएं है दूध में या कुछ डालने के लिए, कुछ ओजस बिटा, अपना सोप है, सब कपड़े धोने का सोप। इस तरह से सारे साधुओं को दक्षिणा भी दी जाती है। ये सब ध्यान साधना में रहते हैं साधु, तो उनका ख्याल रखा जाता है आश्रम की तरफ से, और सारे जो अपने सेवक हैं वो सब परोसते हैं। यहाँ की एक ख़ास बात यह है, दान दक्षिणा दी जाती है ताकि उनके खर्चे जो है थोड़े बहुत निकल जाए। एक और अच्छी बात है, ये सारे जो खाना खाते हैं, खाना खाते खाते एक एक वेदों की पंक्ति या कोई ज्ञान की संस्कृत श्लोक बोलते हैं। और सिर्फ खाना नहीं होता, आप देखोगे सब लोग बैठे बैठे बहुत अच्छे से एक व्यक्ति बोलते जाता है श्लोक और बाकी लोग उसके साथ खाना खाते रहते हैं। जो भी है उनका खाना हो गया है तो वो उठ के जाते हैं, और नए दूसरे अलग अलग साधु आते रहते हैं। सारे साधु संग खाना खा के उनको दक्षिणा लेके और सारा सामान उनको दिया जाता है, फिर वो सब चलते हैं। सब साधुओं के आशीर्वाद। आज तो कार्तिक पूर्णिमा भी है, तो इस तरह से सब आके साधु भोजन करते हैं और सारे साधुगण जो है एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है ऋषिकेश में, अलग अलग जगहों पे क्या हो रहा है, वो बातें होती है, सारी ज्ञान की चर्चा होती है, किसको क्या अनुभव आया उसकी बातें होती है। एक बहुत सुंदर साधु भोज की जो परंपरा है वो चलती आ रही है। तो इस तरह से ये पूरा आयोजन। तो आप भी, आपके जो कोर्सेज का डोनेशन होता है या फिर जो भी होता है ना, आपके जो भी ऋषिकेश आश्रम में डोनेशन आप दे सकते हो साधु भंडारा के लिए। तो यहाँ पे सब लोग आते हैं और सारे महात्मा गण जो आत्मज्ञान की ओर अग्रसर है, सब संन्यास लेके यहाँ पे आए हैं, इन सब का ख्याल रखने का काम
अपने गंगा किनारे वाले सुंदर से ऋषिकेश आश्रम में होता रहता है। इस तरह से लोग आते रहेंगे दिन भर। आज तो कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है, उन सब का सेवा अपने आश्रम की तरफ से होता रहता है। सारे साधु एक साथ आना, यही इसका मेन उद्देश्य है। और साधु भोजन का भाग्य प्राप्त करना, ये जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनका मेन उद्देश्य है। सब साधु जब निकल जाते हैं तो अपने सारे वॉलंटियर्स फिर सब क्लीनिंग करेंगे हॉल का। ये हॉल में कोर्सेज वगैरह भी होते रहते हैं। तो इस तरह से सत्य चैतन्य जी ने कल एक बहुत सुपर बात कही। स्वामी जी, सारे सन्यासियों का एक रूल होता है, वो रूल क्या है? What do you mean? The secret? हाँ, वो वाला, वो जो कल जो मैंने समझा है, 2 लाइन में जो मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाता रहता हूँ, आने से वेलकम और जाने से भीड़ कम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।